Okay, so this session is a group, I think case study for sale. And today we are going for case study number 4 for Steel Authority of India Limited. And let me share this on your screen, the case study. And you are already aware about what case study is all about. What is the meaning of that? So let me share that case study with you. Just give me a second. And case study, as the name shows, is a riddle, is a problem. He will give you a problem, and the problem normally will be industrial problem, a real world industrial problem वो आपको देगा, and you guys are to provide solution to that. Solution should be relevant. GD में there's a topic you discuss, no solution, that is not required. Then comes group task, in which they will give you some kind of hierarchy, and you have to reach a consensus. There's no right or wrong answer, but consensus. Case study is a problem, riddle, and I want to check your acumen to solve the problem. I'll give you a problem and you have to give me the solution, and solution should be good. Case study, if you give me solution here and there, all collectively, you give me wrong solution, you don't get marks. In group task, if all you collectively in one voice tell me something, even if I feel it is not right, marks are given because you said with one voice. Now, case study, you have to speak with one voice, but you have to give the solution also, and that should be correct also. It is not that all you together gave me solution which is not correct, so you are not going to get marks, even if consensus is there. You discussed very well, you talked very well, but then the solution which you gave does not carry meaning, you don't get marks. That is case study. I want to check that how good are you in solving the real world problem. In group task, I checked how good are you in a team work. Can you work in a team? GD I want to check how good are you in communication skill. As a salesperson, I want to check your communication skills. Working in a project, I want to check your team spirit. Boardroom, I want to check your problem solving skill. Boardroom. And I think sale is the only organization which checks all these three things through these steps: GD, GT, and case study. You should be very clear, I mean, what is the meaning of this. So क्या करना है अभी तुम्हें? Participate करना है, and तुम्हें एक you need to speak in a team. I mean, you have to very politely discuss. You are not to create chaos here. Chaos should not be there. And then at the end, you have to provide a solution which should look like a good solution. Help your team members. You tell them this does not look like a solution, and keep jotting down what the solution is. Right? This is how you have to do. So I open the screen now. This is the case study number 4. Maybe this is visible to you and you can see that. So case study number 4. You are working as coordinator in your company related to various brand development issues and decision making. Your company. Please share it in that group also, sir. Tell me again. Please share this document in group also. So let me see whether I can share, but you just note it down. Maybe you can click the photograph on your mobile using this, like this. You click no photo, you can do that. Because I have so far not mailed it, so maybe you don't get it. You can click it and you read 2-3 minutes, it will be visible. So you click it and then we start discussing.
Okay, so I think this is a case study. You people are already aware how you have to discuss. You are not to create chaos. Please unmute each one of you. Please unmute yourself, and please start the discussion now. Good evening, everyone. I am Rajesh Nayak. Today we are case study collected of, here to start the case study. The topic given to us is a company is starting a new brand like a Listen, helmet. please, So directly we have to provide. focus on problem. Like the Our problem problem is is to we have to brand provide development issue branding and to the branding to the new product, that is a helmet. So as far as per my opinion, first of all we have to check that what are the main requirements or to make a helmet. The We can do first SWOT of all, analysis. No, first, As we I are think written to me that the the first one should be starting the product is already there. should be followed by think design, I second think should be first we need to make a advertisement. self-assessment of तो सबसे पहले क्या where होना are we चाहिए of in the the process other of making this competitors product. ना one at a time. पे फोकस करना Are the चाहिए standing in the standards market. प्रोडक्ट or बनाओ are the employees skilled उससे हम लोग कर as सकते देखो हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि to हमें make a new helmet? सुमित शर्मा आप बोलिए पहले। Yeah, yeah. सुमित शर्मा आप बोलिए पहले। मैं ये बोल रही हूँ, देखिए पहले यहाँ पे लिखा है कि मार्केट इज कम्पिटिटिव, दैट मींस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है मार्केट में जो ऑलरेडी ये हेलमेट बना रहे हैं, तो हम पहले उनसे देख सकते हैं कि उन्होंने मार्केटिंग कैसे किया है इस चीज का, ब्रांडिंग। That's why we can do SWOT analysis. एडवर्टाइजमेंट बन गया है तो सबसे हाँ, पहले ये SWOT analysis सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पॉइंट है, देखिए Basically, she is trying to say at the beginning we have to do SWOT analysis. क्वालिटी कैसा होना चाहिए ऑलरेडी जो उसके बाद डिजाइन में सुमी जी का पॉइंट इतना अच्छा है। देखिए सुमी जी का पॉइंट एक अच्छा है। अगर हम लोग पहले R&D मतलब
बेसिकली वो बोल रहे हैं कि R&D Analysis रिसर्च डेवलपमेंट में करना हमको है। एक शॉर्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। Yes. देखिए उसके लिए दो चीजें, perspective उसके है लिए दो चीजें, उसके लिए दो चीजें देखिए मेरे हिसाब से, या तो हमारे पास R&D डिपार्टमेंट अगर अवेलेबल है कंपनी में तो ठीक है, नहीं तो हम लोग किसी रिसर्च Otherwise, we ऑर्गेनाइजेशन can go to R&D local department तो हर company में available IIT, होता है। even R&D के साथ साथ हमें focus क्या क्या करना पड़ेगा? पहले जो कंपनी हमारा सबसे पहले it is नहीं, unique, advertisement it is बात unique नहीं है। because एडवर्टाइजमेंट की सबसे पहले starting मुझे ऐसा हाँ, लगता है सबसे पहले- मैं सबसे इसमें पहले ऐड करना step चाहता हूँ follow करना गाइस, चाहिए। सबसे मेरा पहले अनुसार- ओके मेरा अनुसार क्या है? सबसे सबसे पहले जो है, मैं steps मैं यहाँ पे follow एक चीज करना और ऐड चाहिए। करना चाहता हूँ मेरा हिसाब से सबसे पहले हमें जैसे ऐसा steps होता follow है करना कि चाहिए। बेसिकली हमको हमारे डिजाइन करते हैं तो इसका तो first देखिए, step क्या है ना, अलग अलग ऑडियंस यूज करती है, तो पहले हमको अपना Yeah. टारगेट ऑडियंस उसको Yeah. रिसर्च करना चाहिए, ठीक है। Yes, देखिए yes, तो रिसर्च के साथ साथ listen, मुझे ये listen, लगता है दूसरा point जो आप हमारे ये यंग सकते बाइकर्स हैं होते हैं, कि what guys, is the- सबसे जो पहले हमारे यंग सबसे बाइकर्स पहले होते हैं मुझे ये उनको लगता है अलग कि अलग market टाइप्स में हैं। awareness देखना के चाहिए साथ हमारा साथ क्या में क्या competitor है, कौन कौन सी कंपनी हमारा competitor है। And also at the same time, we have to understand कंपटीटर के साथ साथ हमें ये देखना चाहिए but एक the एक करके quality बोलो। of the helmet is not अपने good. They are not R&D secure. R&D में Right. भेज करेंगे देखो हमें R&D कर रहे हैं branding ना, करनी focus है, on इसमें branding क्या करनी है, इम्प्रूवमेंट हो बहुत सकता है ये ज़्यादा हमें से देखना ज़्यादा पड़ेगा। branding मुझे करनी लगता है है। सबसे पहले डिजाइन फोकस करना चाहिए। जहाँ सबसे पहले हमें जो है क्वालिटी एंड डिजाइन तो फोकस ज़्यादा करना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट अच्छा, one by one, okay, okay, यहाँ पर कोई एक एक करके बोलिए। to the rider. या एक एक करके बोलिए मुझे Kiran, could you please complete your point? दो या तीन पॉइंट है किरण, मैं एक पॉइंट नहीं हो रही है, देना एक चाह रहा करके हूँ। बोलिए। या मैं एक बहुत बोलो इंपॉर्टेंट सारे। पार्ट देना चाह रहा हूँ। प्लीज लिसन मैं एक बोलना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले हम I अपना would like to add कंपटीटर a देखेंगे point here. प्रोडक्ट प्रोडक्ट की branding R&D में करने भेजेंगे समय अपने हमें R&D में ये भी भेजेंगे करना R&D में चाहिए। भेजने के बाद उस पर हम लोग का रिसर्च मेन करेंगे कंसर्न है, तो उसमें Like, क्या हम अजीत जी, इम्प्रूवमेंट अजीत कर जी, सकते हैं। अजीत जी, आप ही बोलेंगे। अजीत जी, अभी आप ही बोलेंगे। देखिए, एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, Guys, एक बात one सुनिए। second. We need to We have to analyze that. focus on the how can we Because reduce the cost most of of the the most of the components are going. अच्छा, ठीक है, सीक्वेंस बना Guys, हमें branding करनी There is है। a lot हमारे of डिस्कशन हाँ, में अच्छा ठीक है देखिए देखिए guys, हम लोग देखिए प्रॉब्लम समझ रहे हैं। In देखिए order to Guys, प्रॉब्लम हमारी क्या है, ब्रांडिंग करना। अच्छा, एक तो sequence ब्रांडिंग बना मतलब लेते समझ रहे हैं क्या क्या होता है। पहले एक देखिए सीक्वेंस बना लेते हैं, एक देखिए देखिए गाइस, ब्रांडिंग ये मतलब सबसे ये समझो फर्स्ट पॉइंट तो ये होता है कि वो उसका हमारे कंपटीटर को को प्रॉब्लम देखना क्लियर पड़ेगा। करना सेकंड पॉइंट है। ये हो गया कि उसको अच्छा, ठीक है, कंपटीटर ठीक के है, अकॉर्डिंग R&D उसका उसका क्लियर प्रोडक्ट ब्रांडिंग देखना पड़ेगा कि हाउ टू इम्प्रूव गाइस, उसमें improve क्या क्या कर सकते हैं। दिखाएं कि वो उसमें ज़्यादा फिर हम एक कोशिश करेंगे But इजीली अवेलेबल There are लोकेशन डिसाइड already करेंगे well established. फिर Point लोकेशन के साथ आप लोग साथ ब्रांडिंग को क्या समझते हैं? कि बाइक आप लोग ब्रांडिंग क्या समझते हैं? बाइक का जो शोरूम है मेरे अनुसार जो ब्रांडिंग बाद एक के बाद एक डिजाइन बोलिए, फोकस करना चाहिए। अभी होगा क्या ब्रांडिंग क्या है हमें पहले वो कोशिश समझना करेंगे चाहिए। उसमें ब्रांडिंग का जो मैं ये समझता हूँ कि हमको हमारे मटेरियल प्रोडक्ट जो जो करेंगे बनाया उसके साथ पहले हमें उसको मार्केटिंग करना है। देना आसान है, एंड पर ऑल्सो ये जो what is प्रोडक्ट branding? आएगा उसको हम देखेंगे कि नॉट ऑब्जर्व विद डस्ट कस्टमर तक हाई लेवल पहुंचाना किस तरीके विजिबिलिटी होना से चाहिए ज्यादा मार्केट से में ज्यादा होना चाहिए एक बात कहिए सुनिए यहाँ पे कोई कहना भी चाहिए चीज़ कि define मार्केटिंग करेंगे। करना चाहिए। पहले आप वो पहले पॉइंट ये रखने देखना चाहिए। होता है कि आप प्रोडक्ट कैसा बनना चाहिए ना। पॉइंट रखने अगर चाहिए। ब्रांडिंग करना जो है तो भी डिजाइन फोकस करना सचिन, चाहिए। हमारा प्रोडक्ट कैसे Here- ज्यादा here our सक्सेसफुल problem is करेगा। डिमांड कैसा है मार्केट की डिमांड Yeah, I want to डिजाइन one करना question. चाहिए। साइकिल बना लेते हैं। तो one question, पहले ये सचिन। बताना चाहिए सचिन से मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। best मुझे है, लगता है sequence बना सचिन से लेते मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। Then we can Yeah, say effective सचिन से एक एक क्वेश्चन sequence करना बना चाह रहा हूँ। दीजिए, हाँ, कि ये जैसे आपने एक बोला एक सीक्वेंस बना लेते हैं, सीक्वेंस में Yeah. डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला Yeah, yeah. देखिए हम लोग को ब्रांडिंग में One मेन second. कंसर्न है। देखिए मैं खाली Guys, one one second. second. There are अमर, अमर, the problem is अमर, there are अमर, well हमें ना established. इसको बोल रही हूँ। ब्रांडिंग अगर ब्रांड में कौन सा बना रहे हो So ना, my point करना है is, ना। सबसे why टॉप not पे we रखना create चाहिए a- व्हाट इज why ब्रांडिंग। not और देखिए we हमको दो create चीज a helmet इंपॉर्टेंट that है, एक तो is हमको unique, ब्रांडिंग भी which करनी है, has दूसरा most हमको बजट several एलोकेशन भी करना है, facilities. ठीक है। हाँ, गाइस यहाँ पहले पे ना हम लोग बट 12 लोगों की बात बोल बोल रहे हैं। एक एक करके बोलिए, ब्रांडिंग एक बहुत एक ही करके ब्रॉड करिए। टर्म है। उसे हम और अच्छा ब्रांडिंग में क्या हाँ, ब्रांडिंग में सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? साउ से ब्रांडिंग में समझो, साउ से पहला समझो। पॉइंट मार्केट सर्वे, मार्केट सर्वे मेरा सबसे पहले क्या होना चाहिए पता होना चाहिए डिजाइनिंग होनी कि मैं चाहिए। ऐड करना चाहता हूँ एग्जिस्टिंग ब्रांडिंग प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं और क्यों हमारा बेस्ट है। ब्रांडिंग को बढ़ाने के लिए अमर मेरा ब्रांडिंग पॉइंट है। ब्रांडिंग में हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि हम हमारे प्रोडक्ट को कैसे सेल करें, हमारा प्रोडक्ट कैसे अदर प्रोडक्ट Yes, we have to sell our product. तो पता होना चाहिए कि कॉम्पिटिटर्स क्या क्या प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें दे रहे हैं। हमारी बिल ज्यादा शेप होनी चाहिए, हमारे को ये उनको बताना पड़ेगा जिससे हमारी सेफ्टी के बारे में पता लगेगा। हमारा Yeah. देखिए product ब्रांडिंग के लिए ये हमारा यकीन फोकस दिलाएं कि होना चाहिए कि ज्यादा हम safe हमारे होगा। प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को हम डाउन अपने प्रोडक्ट को और कौन हमारे से प्रोडक्ट हम को अपने कैसे मार्केट प्रोडक्ट में को एडवर्टाइज We have to करें। हम अपने improve the प्रोडक्ट कौन से quality बेसिस पे and ब्रांडिंग कर everything. सकते हमारा हैं।
हेलमेट की quality मटेरियल से बना है। अच्छा, सबसे पहले जो branding ज्यादा पे बात safe करते है। हैं। ब्रांडिंग करना है। देखिए guys, देखिए हमको देखिए गाइस मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। मैं सबसे क्वेश्चन में ऐड करना चाहता हूँ। मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये सभी ना ऑलमोस्ट I want to one question. ब्रांडिंग अच्छा एक सेकंड एक सेकंड मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ब्रांडिंग पे एक बोलिए। मुझे लगता अच्छा, है ये क्वेश्चन मैं करना चाह रहा हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांडिंग में हर कोई एक पॉइंट बोलेगा। ब्रांडिंग में हर कोई एक पॉइंट बोलेगा। मैं स्टार्ट में करता हूँ। मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। अदिति स्टार्ट कीजिए। पहले अदिति स्टार्ट करेंगे। अदिति स्टार्ट करेंगे। मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। या मुझे ये लगता है ब्रांडिंग पहले ब्रांडिंग पे अगर कंपनी के एडवर्टाइजमेंट और ब्रांडिंग और एक कंपटीटर को इजीली जजमेंट कर लेंगे तो हमारा बहुत इजी हो जाएगा। तो प्रोडक्ट को R&D में अपना भेजेंगे, उसके बाद हम उसमें मॉडिफाई के लिए देखेंगे और सबसे सेफ्टी पर हमारा हेलमेट है। We have to reduce the material cost and gain more profit by it. पता होना चाहिए और ये बताना पड़ेगा। मेरे पास ब्रांडिंग का एक अच्छा ऑप्शन Let's है। bet मेरे on पास highest branding का अच्छा बात हो रही है ना गाइस मेरे पास एक पॉइंट है ब्रांडिंग की। अगर हमारा बताएंगे ना कस्टमर्स को नहीं निकाल पाएंगे मार्केट में लॉन्च करें किसी ब्रांड we can make use of sensors and IoT devices. So our helmet has even more features than the existing helmet. So that we can create more already been developed ना we introduce a और helmet में मुझे smart helmet. So smart helmet in this smart helmet we can क्वेश्चन I would like हम लोग को ब्रांड वैल्यू बढ़ाना है। देखिए हमारा पॉइंट है हम लोग हमारा पॉइंट बनाना है। yes तो then we should come up with a helmet साहू जी which is unique because पहले डिस्कस करते हैं। देखिए मेरा नाम एक है पहले डिस्कस करते हैं। We can also cater the areas where the competition is quite low. Amar Sahu say something. Please listen. Amar Sahu say something. कुछ कह रहे हैं। Amar Sahu मैं बोल रहा हूँ। देखिए मैं बोल रहा हाँ हूँ। देखिए अजीत जी का सबसे पहला पॉइंट सबसे अच्छा था। ब्रांडिंग से पहले हम लोग R&D किए। R&D में हम लोग क्वालिटी देख लिए, कॉस्ट इफेक्टिव देखे, हर चीज जो हम लोग का मिनिमम रिक्वायर्ड वो हम लोग चेक कर लिए। और साथ ही साथ जो हमारा और मुझे ये लगता है कि जहाँ भी बाइक का शोरूम है ना वहीं पे अपना लोकेशन जो डालना ऑलरेडी चाहिए। कस्टमर्स जो ऑलरेडी जो प्लेयर लोकेशन अपना फिक्स करना चाहिए कि जहाँ बाइक का शोरूम है उस जगह दूसरा बाइक पे अपना रखना दूसरा चाहिए। We can target the areas where the bike is already present. हाईएस्ट मटेरियल होना चाहिए लेकिन उसका वेट छोटा सा बहुत कम अपना होना इवेंट चाहिए। ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। अभी दूसरा पॉइंट ब्रांडिंग। अभी हर कोई ब्रांडिंग में कुछ हमारा जो प्रोडक्ट था हमारा जो बाकी प्रोडक्ट जो मार्केट में पहले से अवेलेबल है इवेंट ऑर्गेनाइज करा सकते हैं ना। प्लीज कंटिन्यू। मैं बोल रहा हूँ देखिए अभी तक क्या हो रहा है ना, हम सभी क्वालिटी पे बात कर रहे हैं, बट देखो इसके अलावा मेरे पास दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है, एक होता है कि स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट ऑफ एडवर्टीजमेंट और दूसरा ये होता है कि जो मोटर लेट मी स्पीक फर्स्ट जितनी भी मोटर बाइक है फॉर एग्जांपल होंडा है या बजाज है, तो हम उन बाइक के साथ टाई अप करें कि अब जब आप अपनी बाइक बेचेंगे तो उसमें हमारा टाई अप शोरूम के साथ टाई अप करना चाहिए। इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। और इसमें होता है रेनफोर्समेंट मटेरियल यूज करना चाहिए। साहू अजीत ने जैसा पॉइंट बोला है, मैं उसमें एक पॉइंट ये ऐड करना चाहता हूँ कि हमारा जो भी हम नया प्रोडक्ट बना रहे हैं और थोड़ा सा मोनिपुलेटिंग टाइप का हेलमेट होना चाहिए जिसका एयरफोन और हेडफोन उसमें ऐड किया जाए तो कभी-कभी होता है कि घर पे हम लोग छोड़ देते हैं, उसमें हेडफोन टाइप का फैसिलिटी देना चाहिए। अभी तक जो कंक्लूजन As well as we can recruit और हेलमेट में मुझे लगता है नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल टाइप का होना डिजाइन पे ब्रांडिंग अलग देना चाहिए कि यू कैन कंट्रोल योर गाइस। यहाँ पे हमें हेलमेट में हम कुछ टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकते हैं। मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ, जैसे हमको अपना हेलमेट जो है वो रेसिंग दूसरा पॉइंट बोलिए। जैसे हमको अपना मैं बोल हेलमेट रही हूँ कि अगर से हेलमेट में हम
थोड़ी टेक्नोलॉजी का यूज स्मार्ट हेलमेट की बात करें आप, स्मार्ट हेलमेट की बात करें। स्मार्ट एक चीज ओके वो हो गया। स्मार्ट हेलमेट की बात कर रहे हैं फीचर देखिए देखिए वो हो गया। कोई बताता हूँ आपको। आपको न्यू मटेरियल को भी मैंने एडिशन करना चाहिए हेलमेट के लिए। देखिए देखिए हम क्या कर सकते हैं। अनीता का पॉइंट को मैं इंप्रूव करना चाहिए, कुछ बताना चाहता हूँ। आप मेरी नई बात तो सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं जैसे बोला कि मटेरियल को मैंने इंप्रूव करना चाहिए। मुझे लगता है कि इंडियन हम लोग अपना हेलमेट इसमें क्या होता है कि लेस वेट विद हाई स्ट्रेंथ रहता है। हमको क्या करना है, अपना हेलमेट जो है वो रेसिंग बाइसिकल के लिए भी बनाना है, ठीक है। तो जैसे हमारा जो वर्ल्ड बाइसाइकिल, लिसन हमारा अरे पूरी बात तो सुन लो। तो हमारा जो वर्ल्ड सेफ्टी डे हमारा जो वर्ल्ड सेफ्टी डे होता है, उस पर हम छोटा सा एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा दें बाइसिकल का, और उसमें अपने हेलमेट अगर देंगे ना अपनी कंपनी का नाम लगा के, तो उससे हमारी बहुत अच्छी ब्रांडिंग हो सकती है। यस, इसमें मैं भी एग्री करूंगी। बाइक शोरूम के साथ एक आपका फ्रेंडली है, कैटेगरी में निकालना है, पहले मोटरसाइकिल के लिए निकालना है और दूसरा हमको साइकिल बाइसाइकिल के लिए हमारी कॉस्ट कम रहेगी ना, तो वहाँ पे हमारा बजट का भी इशू आ जाएगा। एक बार हमारा नाम बन गया, ठीक है, फिर हम मोटरसाइकिल के लिए भी निकाल सकते हैं। पहले इम्पोर्टेंट है ना स्मार्ट हेलमेट का बाइसाइकिल को इन्वॉल्व करना चाहिए। देखिए बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, एक और बहुत अच्छा आइडिया है स्मार्ट हेलमेट, बहुत अच्छा आइडिया है जो मैं बता रहा हूँ। एक और स्मार्ट आइडिया है ऐप्स में यूज करेंगे। जैसे मैंने बताया कि हमको ऐप्स में यूज करेंगे, मोबाइल ऐप्स चाहिए, कंपनी के साथ टाई अप करना चाहिए, मैंने बताया था। बट एक और मेरे पास दूसरा आइडिया ये है कि सपोज कि कोई बंदा हेलमेट खरीदता है, उसको हम अपने पीपी कुछ गिफ्ट कर सकते हैं, या कोई पीपी खरीदता है तो हम उसको हेलमेट गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमको वो गिफ्ट करने में इजी होगा। तो वहां पे क्यों हमारा ज्यादा खर्चा भी नहीं बनेगा। अजीत लेट मी स्पीक। आई थिंक इसके अलावा हमें मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, स्ट्रैटेजिक एडवर्टाइजमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए। व्हाट इज रोड सेफ्टी, उसको प्रॉपर एक डिजाइन भी देना चाहिए। आज के डेट में बड़ा ब्रांड एम्बेसडर भी हायर कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम मार्केट को कुछ ब्रांड एम्बेसडर जो है, ये बहुत अच्छा आइडिया है। या फिर धोनी है जो बाइक फ्रीक्स है, उनको कोई भी इंसान बड़ी चीज है। अगर वो सबसे बड़ा पॉइंट है, देखिए एक सबसे बड़ा पॉइंट हम लोग भूल रहे हैं। जब हम लोग बड़ा पॉइंट हम लोग भूल रहे हैं, देखिए एक बड़ा पॉइंट हम लोग भूल रहे हैं। हेलमेट जब बात करें तो हेलमेट मतलब सेफ्टी की बात आती है, और सेफ्टी की बात आती है तो मैं सबसे बेस्ट पॉइंट एक बोलूंगा, जो स्मार्ट हेलमेट वगैरह जो हम लोग एप्स के जरिए यूज करें, जैसे कि वो एक्सीडेंट डिटेक्ट कर सकते हैं, कहाँ किसी का अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। उस तरह का टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिक होता है ना ब्रो, जो पॉइंट बोला है मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा। अगर हम हेलमेट में ही कोई ऐसा फीचर ऐड करते हैं जिससे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है नियर बाय पुलिस स्टेशन और नियर बाय हॉस्पिटल को अगर साथ लेके चल सकते हैं, हो जाएगा। अगर हमारी इलेक्ट्रिक ग्लव्स अगर सही रहा। आई थिंक हम लोग टॉपिक को डिबेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग का टॉपिक दिया है ब्रांडिंग ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, और हमको जो बजट दिया गया ना उसको ब्रांडिंग बजट एलोकेट करना है, जब हमको मार्केटिंग एलोकेट ताकि हम लोग का मार्केटिंग ज्यादा हो। मैं खुद लगभग और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है करना पड़ेगा, करना पड़ेगा हम लोग हमारे पास ऑप्शन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये लग रहा है कि हमें उसको एक क्वालिटी के साथ साथ एक
प्राइस भी फिक्स रखना चाहिए। गाइस हमारे पास एक- और के रिस्पेक्ट में प्राइस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है कि हाई नहीं लेके जाना चाहिए। By giving discount, we can attract वो people, पोर्टेबल no? होना चाहिए। It is already proved that people like discount. रिक्वायरमेंट मैं एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना लोकेशन चाह रहा पे हूँ कि पहुंच हमारे जाना पास चाहिए। हमारा जैसा देखिए, हम heavy नया branding product हम करना बनाने है। वाले हैं, और- तो हमारे पुराने प्रोडक्ट पहले से अगर market हमारा में available कंपनी है। में अगर हम नया या- प्रोडक्ट को पुराने प्रोडक्ट का second, एक रेफरेंस देके अगर हम मार्केटिंग करें कि हमारा प्रोडक्ट पहले से अवेलेबल है, वो तो रिलायबल भी है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारे पास रिपोर्ट भी है, तो उसके थ्रू अगर हम नया प्रोडक्ट भी मार्केट में लॉन्च करते हैं तो कस्टमर जो और भी होगा उसको वो अच्छा, हमारी बात branding मानेगा। के लिए प्रोडक्ट और एक point आया, तो उसके या ऊपर branding हमें के लिए पहले से social media प्लेयर्स हैं उसके साथ अगर हम टाई अप करें ब्रांड तो हमारे फंड का इशू नहीं आएगा मेरे ख्याल से वहाँ पे। अच्छा, एक सेकंड, उनके उनके अलॉन्ग तो मुझे ये लगता है कि उसके उसके साथ अपना हेलमेट के साथ साथ जैसे अपना ही देखिए, कंपनी का एक point अच्छा है, इलेक्ट्रिक का का अच्छा है, उसको भी हमें ऐड करना हम चाहिए। स्लोगन भी लेके आ जिससे सकते हैं। उसका भी इम्पोर्टेंट सचिन जी का बस जो टैगलाइन होती है वो लोगों को बहुत जल्दी एक समझ आ जाती है। एक बार उनके अमर- ऊपर हमारे अमर- tagline अमर पर सर, कोई- सर, I also agree. We can create an innovative tagline. कोई यूनिक ब्रांडिंग या दे या कोई अपना यूनिक लोगो लेके आ रहे हैं। Tagline important होता है। दिमाग में ज्यादा छप जाए। ठीक है, और टैगलाइन भी बिल्कुल टैगलाइन भी बिल्कुल ऐसी होनी टैगलाइन चाहिए। का एक ब्रांड मैसेज, एक लोगो या- अगर हम लोग बना वही दें। वही हम Tagline टैगलाइन एक लोगो अच्छा और point है। वो तो इम्पोर्टेंट होता ही है, लेकिन ब्रांडिंग, एक सेकंड, एक पॉइंट है मेरे पास, एक पॉइंट है। अगर जब ब्रांडिंग की बात करें तो हमारे कुछ टारगेट ऑडियंस होंगे जो मतलब ज्यादा से ज्यादा हम लोग किसी जैसे कि 18 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स के रेंज पे हम लोग थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो हम लोग, मुझे लगता है कि ब्रांडिंग अगर बढ़ानी है, जैसे कि आई कैचिंग होना चाहिए, मुझे लगता है उनके डिजाइन पे भी थोड़ा काम करना चाहिए। तो मैंने हेलमेट आपको बताया ना या- कि आई या- कैचिंग अपने ऑडियंस है ना उसको अपन क्या करते हैं Guys, जो one second, I would like to ना add a उसमें point थोड़ा सा here. स्पोर्टी कुछ हेलमेट आजकल के कुछ नए डिजाइन दे सकते हैं। ओल्डर Primarily ऑडियंस worn को for थोड़ा safety. सेफ्टी निकालते हैं। Helmet is But helmet is वो- primarily worn for safety. That is the Yeah, main yeah. main objective of the helmet. Yeah. So we need to bring लेकिन हाँ, बिल्कुल, more बिल्कुल। guys, Yeah. let me finish my point. Yeah, we need to bring we need to design a new helmet so that it enhances the security and also gives the assurance that less accidents will happen. So Yeah. that since we are using it for bike helmet also, so we can place an LED strips on the back side of the helmet. So because it's very difficult that's for a good bicycle point. rider on which direction he may be taking in the next turn. So Yeah, the yeah, accidents can happen very lessly in this point. या- या- देखिए, या- या- बजट हमारा मैं- बजट मैं- समझ में आ गया ना, मैं- वो तो मैं- हम कर चुके हैं। बजट का ठीक है, issue अब इतना नहीं, देखिए, बजट भी हमारा issue है ना थोड़ा सा। Yeah. बजट में किस है हमारा Guys, Yeah, guys, listen, these मैं can be एक very, important very, point very, बोलना very, चाहता करण मैं आपकी बात को थोड़ा एक्सटेंड करना चाहता हूँ। करण देखिए, हम एक काम कर सकते हैं। बजट एरिया Karan says Maybe something these are- good these point, but kind of I want to add helmets takes something. यहाँ पे very अभी minor दूसरा ऑप्शन हमारे components पास ये है कि which हम are very रेडियम का यूज करके easily पीछे available स्लोगन in लिख our देते हैं। market. ठीक है, अगर हम रेडियम का यूज करके पीछे स्लोगन लिख देंगे ना तो कोई लाइट पड़ेगी अपने आप ही वो फिर हमको चमकेगा, Yes, तो sir. एलईडी यूज Yes, करने की ma'am. जरूरत ही नहीं है। तो This is हमारे a better दोनों better चीजें option, I think. हमारा This is a बजट better ऑप्टिमाइज करने के लिए मेरे पास भी एक ऑप्शन है। अगर हम उस height पे आता है, मैं उस बजट height ऑप्टिमाइज करते हैं तो I'm बजट not talking about the radius, guys, because एक फाइबर चीज बेस्ड है, अपने और मटेरियल एक यूज चीज है, किया in उस the middle वजह of से the road. हमको या एक और एक point चीजें ये important, बहुत When important when point he मैं is बोलने taking जा a रहा left हूँ। turn or right ब्रांडिंग turn. करना है ना, So ब्रांडिंग हम लोग these जो can कर be रहे very, हैं, अगर आप very क्या कर रहे हैं कि हमारा enhance the minor pro- components like ब्रांडिंग Yeah. अगर कर रहे हैं ना, एक अच्छा चीज है ब्रांडिंग एक अगर अच्छा कर पॉइंट रहे मैं ये हैं, बोलने जा रहा हूँ, अच्छा पॉइंट ये है कि इन्हें जो टीवी एड्स दे रहे अपना हैं, ब्रांड कर रहे ब्रांडिंग हैं ना, अगर कर तो रहे हैं, ब्रांड अगर हेलमेट ब्रांडिंग में अगर इम्प्रूव कर कर रहे रहे हैं हैं तो तो उसके टीवी साथ एड्स दे सकते हैं, यूट्यूब में ऐड दे सकते हैं, शॉर्ट एड्स होता है ना यूट्यूब में, जब वीडियो चलता है बीच में 1 मिनट का एक ऐड दे सकते हैं, तो लेकिन यूट्यूब हमारा में वो ad टीवी कैसे वगैरह ऐड कर वगैरह सकते हैं में सोशल मीडिया में। Yes, सुमी ने sir. भी ये बात बोला था, आ गया है वो जितने सुमी भी ने भी ये लोग बात बोली थी कि प्रमोशन मैंने ऐड already करेंगे बोला सोशल था। मीडिया में। Yeah. और देखो ये जो चैनल से मयंक जी ने बोला था कि टैगलाइन वाला, और जैसे बाकी लोगों लोगों ने एग्री किया था, अनीता जी और बाकी लोगों ने, हिमानी ने भी एग्री किया था कि ब्रांड एम्बेसडर जैसे कि धोनी हो गया या मन अब्राहिम हो गया, जो Youth icon. freaks है बाइक के है ना, जो उनको बाइक ब्रांड इन्फ्लुएंसर है, जो बनाया ज्यादा गया है। बाइक्स पे होते Yeah, हैं, yeah. बाइक्स में इसके जो अलावा होते हैं जैसे ज्यादा। टाई अप हाँ। करने की बात हुई थी, फिर हुआ था स्ट्रेटेजिक जैसे प्लेसमेंट ऑफ आपके द कुछ एड, और फिर यूट्यूबर्स एक और बात जो यूट्यूबर्स हमने भी करी होते थी हैं वो जो ये अपने था And कि also we have हम to लोगों target ने the area बाइक where ये the भी competition करेंगे, is low. स्मार्ट हेलमेट के अकॉर्डिंगली हमको अपना प्राइस को सेट करना पड़ेगा की नहीं है ना, स्मार्ट हेलमेट, स्मार्ट हेलमेट। या स्मार्ट हेलमेट और हेलमेट स्मार्ट होना बात उसका देखिए, ये है हम कि एक चीज हम और भी कर अपने सकते हैं। product लिसन से गाइस, बात हम नहीं एक कर चीज रहे और ना। भी कर सकते हैं। हमारा- जैसे हमारा ऑटो माइक एक्सपो होता है ना, ब्रांडिंग जैसे हमारा ऑटो एक्सपो होता है, बाइक एक्सपो होता है ना, अगर वहां पे भी अपने वहाँ पे अगर वहां पे अपने प्लेसमेंट हेलमेट, जो है हाँ ना उसमें आ जाएगा वो। हाँ ठीक है, Yeah, yeah. तो वहां से हमारी रीच बहुत क्लियर बढ़ेगी। नहीं हो पाया, मयंक जी फिर से क्लियर कीजिए।
फिर से कंटिन्यू कीजिए। जो हमारा ऑटो एक्सपो होता है, जो हमारा बाइक एक्सपो होता है ना, लाइक जब नई नई बाइकें लॉन्च होती है तो वहां पे आप जाकर अपना शोरूम लगाते हैं, ठीक है। तो अगर उनके साथ ही हम कोलैबोरेट करते हैं, बाइक वालों के साथ ही, ठीक है, और उसके साथ हम अपना हेलमेट का भी हम करते हैं। अच्छा, ये पॉइंट At the same time, we have to launch a new अजीत जी का पॉइंट था, अजीत जी का पॉइंट था, अजीत जी का पॉइंट था। मैराथन हो गया, उसमें भी हम लोग अपना वो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, सबसे इम्पोर्टेंट सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होता है अपने किसी भी नए प्रोडक्ट को दिखाने के लिए। ये एक मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बताना चाह रहा हूँ, बहुत important point है। क्या होता है कि 20 ईयर से लेके 40 ईयर का जो होता है ना, ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता है, हेलमेट का इम्पोर्टेंट नहीं समझता है। हेलमेट के प्रचार के साथ साथ सेफ्टी पर्पस में वहां शो करें कि हेलमेट क्यों यूज करना चाहिए, क्या पर्पस है, अवेयरनेस। and we can aware them by some like कितना इम्पोर्टेंट है वो भी बताना चाहती हूँ। 18 to 25 इयर्स वाले बच्चे जो हैं वो सेफ्टी के ऊपर ज्यादा देखते नहीं है, तो उसके कारण ये होता है कि हेलमेट भी हो जाएगा और हमें एक सोशल एक है कि सोशल एक माने कुछ सोशल टाइप का बात भी अच्छा पॉइंट एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पेट्रोल पंप पे हम कुछ ऑफर चला सकते हैं, लाइक पेट्रोल फिल करने पे हम उसको कुछ हेलमेट गिफ्ट कर दें, और दूसरा एक कंपनी के प्रोडक्ट के यहाँ पे राजेश ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि हमें पेट्रोल पंप पे बजट एलोकेशन Rajesh, could you please repeat your point? सोशल मैसेज दे सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है सोशल मैसेज दे सकते हैं। राजेश जी प्लीज रिपीट। पेट्रोल पंप पे कुछ ऐसा ऑफर हम लगा दें कि सर्टेन अमाउंट ऑफ पेट्रोल फिल करने पे हम उनको कुछ कंपनी की तरफ से कुछ और गिफ्ट दें, या फिर उनको हेलमेट प्रोवाइड करें, या उनको प्रमोट करें कि आप हेलमेट लीजिए तो आपको और भी कुछ इसके अलावा और कुछ गिफ्ट मिल सकते हैं। Okay, तो वो भी एक अच्छा let me tell you how to conclude now. I'll come to each one of you one by one, and you have to give me one point each. 1 point each. I'll be coming randomly to you. Now you people have discussed and you have a couple of points in your mind. So I'll come to each one of you and each one will give me 1 point only, separate point. So I start with Sumi. थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी सर। तो फर्स्टली इसके जो हम लोग का आज केस स्टडी दिया गया है कि हम लोग को अपना ब्रांडिंग सजेस्ट करना है कि कितनी टाइप से हम लोग ब्रांडिंग कर सकते हैं, एंड ऑल्सो टू एलोकेट आवर बजट सो दैट इम्पैक्ट ज्यादा से ज्यादा हो। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि सबसे पहले हमें एडवर्टीजमेंट करना चाहिए स्ट्रेटेजिकली, कि हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में देखें, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में हम लोग एड्स चला सकते हैं, शॉर्ट्स चला सकते हैं, जिससे कि हम लोग के हेलमेट्स का ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन हो। सो आई थिंक हम लोग को एडवर्टीजमेंट, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट, राइट? सर ओके, अमर साहू। यस सर। सो जो ब्रांडिंग की, यस सर, तो ब्रांडिंग की जब हम लोग बात करें तो हम लोग पर्टिकुलरली एक टारगेट ऑडियंस को पहले हम लोग सेट करते हैं कि जैसे कि 18 से 25 या 26 इयर्स पे जैसे हो रहा है या 30 इयर्स तक हो रहा है, तो उस टाइम में उस एज में क्या होता है कि जैसे ज्यादातर लोग उस एज में हम लोग हेलमेट्स और सेफ्टी पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं हम लोग, लेकिन बाकी गाड़ी चलाने में और स्पीड पे ध्यान देते हैं। तो शायद अगर वो जो एक्सीडेंट प्रोन जितने भी हो रहे हैं उसको थोड़ा कम करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगी हम लोग स्मार्ट हेलमेट्स को बनाएं, जिसमें उसमें हम लोग एप्स वगैरह इंस्टॉल करें जो मोबाइल के साथ लिंक होता है, और कहीं भी कुछ एक्सीडेंट्स या कुछ भी हो रहा है तो वो हम लोग को बाय ऐप थ्रू डिटेक्ट होके वो एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए जिसके पास पहुंचना है। थ्रू तो आप एक यूनिक प्रोडक्ट बना रहे हैं जो मार्केट में नहीं है। You want to create a unique product जो मार्केट में नहीं है, राइट? ये सर, वो एक मतलब इस प्लेयर पे जनरली, क्योंकि हम लोग को पता है कि बाकी जो नॉर्मल चीजें हम लोग जो बनाएंगे उसमें काफी प्लेयर्स है वो कम्पीट कर रहे हैं उस चीज पे। आपको लगता है कि उसकी कॉस्ट बाकी मार्केट में जो प्रोडक्ट है उससे कम होगी? एंड इंडियन मार्केट इज वेरी कॉस्ट कॉन्शियस। इनिशियली यस सर, इनिशियली मेरा पॉइंट यही था कि जो स्मार्ट हेलमेट्स की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पहले क्या होता है, पहले शॉर्ट टर्म थोड़ा लॉसेस हम लोग को झेलना पड़ेगा, क्योंकि उसको हम लोग को एज ए स्मार्ट हेलमेट पहले लोगों को बीच वो पहुंचाना पड़ेगा, हर लोगों के पास पहुंचाना पड़ेगा। लोग जब अपने आप देख रहे हैं कि इसका इंपॉर्टेंस आएगा कि हाँ मेरा कहीं कुछ भी हो रहा था तुरंत मुझे बाय हॉस्पिटल्स या नियर बाय कहीं पे अगर बाय ऐप के थ्रू अगर पहुंच जा रहा है, उसका लास्ट मोबाइल कहाँ डिटेक्ट हुआ था वहीं पर। क्या है, जो लोग हेलमेट नहीं डालते वो इतने कॉन्शियस नहीं है हेल्थ को लेके कि वो ऐप अगर आप लगाएंगे तो उसको जल्दी से खरीद लेंगे, या उसका कॉस्ट कम एनालिसिस आपने किया है कि जो आप लगा रहे हो उससे कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर उसकी कॉस्ट बढ़ गई तो वो टारगेट पॉपुलेशन जो ऑलरेडी हेलमेट नहीं ले रही है वो महंगा हेलमेट तो बिल्कुल नहीं लेगी। थिंक ओवर दिस पॉइंट। ओके, साहू अजीत अनम्यूट। हाँ, you are not audible. Am I audible now, sir? Yes. Okay, thank you, sir. Sir, I think कि
जो हमारे प्रोडक्ट है हेलमेट की सर, हम अगर टाई अप करते हैं मोटर बाइक ऑर्गेनाइजेशंस का जो बाइक बेचते हैं सर, हम उनके साथ टाई अप करें कि अगर वो बाइक खरीदने आते हैं तो हम उनको हेलमेट फ्री देंगे ऐसा। और इसके साथ ही सर अगर कोई बंदा किसी भी शोरूम से हेलमेट खरीदता है तो क्योंकि सर हमारा अपना प्रोडक्शन है ऑलरेडी पीपीएस का, तो हम उनको बाकी पीपीएस पे कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी फैक्ट्री हमसे पीपीएस लेती है तो हम उनको हेलमेट डिस्काउंट में दे सकते हैं सर। इसमें हमारा बहुत ज्यादा खर्चा नहीं बैठेगा बिकॉज हमारे खुद के घर के प्रोडक्ट्स है ये। तो सर ऐसा मेरे को लगता है कि हम ये ऑफर देंगे लोगों को तो हमारा ब्रांडिंग अच्छा होगा। ये पॉइंट हो सकता है बिकॉज आप ऑलरेडी आपकी एक मार्केट है, आप इंडस्ट्रीज को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सेफ्टी देते हैं। जो वर्कर्स आपके हेलमेट फैक्ट्री के अंदर यूज करते हैं वही वर्कर्स बाहर बाइक पे आपका हेलमेट उनको यूज कर सकते हैं। अगर आप कुछ कोलैबोरेशन मार लें उन कंपनीज के साथ और ऑटोमोबाइल कंपनीज का कोलैबोरेशन मार लें सो दैट विन विन सिचुएशन हो। और अगर अच्छा आपका नाम अच्छा बना है एक जगह पे, अगर अच्छा का नाम बना है, जो वर्कर आपका इंडस्ट्री में हेलमेट यूज कर रहा है वो उसमें अगर आपका नाम अच्छा बना है तो दैट इज द मोस्ट पॉपुलेशन आई मीन प्रोबेबल कस्टमर फॉर यू, जिसको आप कन्वर्ट करवा सकते हैं बिकॉज ही नोज यू। नाउ वी कम टू हिमानी। सर मेरा ये पॉइंट है कि जब भी हम लोग हेलमेट को बेचेंगे तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है सेफ्टी। तो हम लोग अपने कस्टमर्स को ये बताएंगे कि हमारा हेलमेट सबसे ज्यादा अच्छा है। हम लोग उसमें ये बता सकते हैं कि हम लोगों ने कौन सा मटेरियल यूज किया है और हम लोगों ने कितनी फोर्स, जितनी हम लोग इसमें लगाएंगे तब तक ये नहीं टूटेगा। ये हम लोग अपने कस्टमर्स को बता सकते हैं। ये कैसे बताएंगे आप उनको? सर एडवर्टीजमेंट के थ्रू। उसमें क्या बताएंगे आप? यही सर कि हम लोग जैसे मतलब जैसे एक्टिवा की ऐड आई थी ना 4G की, उन्होंने लाइट ऑन रखी थी तो ऐसा बोला था कि रात में भी और दिन में भी लोग इसको चलाएंगे तब भी लाइट, मतलब उनका जो भी कॉन्सेप्ट था वो उन लोगों ने बताया था। तो हम लोग ये बता सकते हैं आप ऐसा कर सकते हैं, कीपिंग यू सेफ इनसाइड इंडस्ट्री, कीपिंग यू सेफ ऑन द रोड्स। क्योंकि आप ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को लिंक करने की ट्राई करें जो आपका ऑलरेडी अच्छा चलता है। आप उस तरीके से एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर आपका हेलमेट लगा के वर्कर काम कर रहे हैं, सेफ हैं, और वही वर्कर फिर जब ऑफिस के बाद जाता है तो एक हेलमेट उठाता है जो आप ही की कंपनी का है और रोड पे सेफ है, और उसकी पंच लाइन होगी कीपिंग यू सेफ इन द इंडस्ट्री एट वर्क प्लेस, कीपिंग यू सेफ ऑन द रोड्स, और अपनी कंपनी का लोगो आ जाएगा। समथिंग लाइक दैट हिमानी कैन बी वंडरफुल आइडिया। ओके अजीत कुमार। यस सर। Yes, first of all, sir, lots of thanks to give me opportunity to conclude this topic. सर मुझे लगता है जो वर्कर कंपनी में है वो मटेरियल को एक जस्टिफाइड लाइक वेटलेस एंड ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ होना चाहिए। एबिलिटी मैंने उसको हाई लोड पे भी देखेंगे सर, उस कितना मैंने लोड वो मैंने सह सकता है सर। वो ऐसे मटेरियल को क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे सर, और नया मटेरियल लाने की कोशिश करेंगे सर। आज के डेट में होता है सर, पहले मेटल नॉन मेटल यूज होता था सर, आज डेट में होता है रेनफोर्समेंट मटेरियल कंपोजिट टाइप का होता है सर, क्योंकि एक वेट बहुत कम होता है लेकिन उसमें हाई स्ट्रेंथ होता है सर। तो मुझे लगता है कि उस टाइप का मटेरियल को हम अंदर भी यूज करेंगे कंपनी में सर, और उसको हम ट्राई करेंगे मार्केट में कि फ्लेक्सिबल हो, लोगों को ये नहीं लगे कि बहुत वजन सर पे उठा के घूम रहे हैं, उन्हें पूरा कंफर्टेबल फील जैसा होना चाहिए सर। तो आप ये कैसे मानते हैं अजीत के ऑलरेडी कंपटीटर ये यूज नहीं कर रहे हैं? यस सर, मुझे बिकॉज सर मोस्टली आप कंपोजिट मटेरियल को देखेंगे तो उसमें डिफरेंट वैरायटी ऑटोमेटिक आते रहता है, बिकॉज सर सब मेटल एंड नॉन मेटल के साथ वो कंज्यूमिंग करके आता है सर। तो हम लोग कोशिश डिफरेंट मटेरियल को यूज करके जिसका स्ट्रेंथ हाई हो, वेट बहुत लेस हो, जो इजिली आपका पॉइंट ये बनेगा कि आप कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि आपका कंपटीटर कहाँ लैग कर रहा है, वेयर ही इज लैकिंग, और वो गैप आप प्लग करने की ट्राई करेंगे, राइट? यस यस। ओके किरण, गो अहेड। Sir, I would like to add a point here because we are having a very healthy competition with our competitors. I would like to introduce a product which is developed by IITians. Like we give our case study to IITians and we advertise our product as made in IIT because Indians have very good like attitude and believeness once it is made in IITs, because a lot of research will go on before we introduce our products. So I think this. You are trying to link expertise with the product, so that advertisement we have seen already something like that, like dentist referring some toothpaste
or Yes. engineer, civil engineer suggesting some cement, right? So, Yes, sir. but I think ITN may not be appropriate. You are already a company. Ours is already a company in safety. We have already a brand. So why don't I mean we make it? We are better brand than IIT in making the safe helmet. Not making, sir, but some amount of research can be done by them, so that, like, if I take an example of Atomberg fans, this is built by IIT Bombay alumni, so it has a very good market in, like, they come from IIT, so they would have done very But much maybe research there on are it. so many engineers of IIT in your company, maybe. So why you want to go to IIT as institute? Because you are industry. Okay. So Kiran, you may not get advantage of that, because you know that will be like you have so many engineers who are from IIT maybe. So you are saying, okay, this boy in IIT has made this helmet for us, so we are giving it to you. That may not work actually. Okay. Practically. Okay, Mayank. ओके सर, तो बेसिकली हमारा प्रॉब्लम था कि हमको ब्रांडिंग एनहेंस करनी थी। तो सर मेरा सॉल्यूशन यही था कि इसमें हम क्या है, यूनिक लोगो और यूनिक डिजाइन के साथ आ सकते हैं और यूनिक स्लोगन के साथ आ सकते हैं, जिससे क्या होगा, हम लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलेंगे। बिकॉज एक बार उनके दिमाग में जो नाम छप जाता है, फिर वो उसी को लेना प्रेफर करते हैं। तो जैसे आपने भी बताया था अभी हिमानी के केस में कि जैसे एक प्रॉपर लोगो दे दिया था, लाइक सेफ्टी इनसाइड द इंडस्ट्री एज वेल एज सेफ्टी इनसाइड द रोड। तो अगर हम ऐसे कोई एक यूनिक लोगो और यूनिक स्लोगन के साथ आके साइकोलॉजी पे खेलेंगे, तो अल्टीमेटली हमारी ब्रांडिंग बढ़ेगी उससे। आपको अपना जो कंपनी है ना उसके साथ उसको लिंक बिठा के करना पड़ेगा। हाँ, यस सर। And now let me check, go for Amar, we have done. Deep Chakravarti, Deep, yes, go ahead. Yes, sir. Sir, basically we can tie up with a person who is basically youth icon like MS Dhoni, so he can be an effective brand ambassador of our company, and that can catch the youth who mainly used to ride motorcycle. And also I want to add one more point, that we can reach the area where our competition is quite low. Like we know in India, most of the places people buy the helmets which are not coming from a proper brand. Basically, they get it at lower cost. So basically, we have to target the area and sell our products. Okay. Okay. So area specifically, you want to go for it. Rajesh. सर मुझे ऐसा लगता है कि हमको मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहले उसको लोगों को समझाना पड़ेगा कि हमारा हेलमेट क्यों सेफ है। क्योंकि उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है सेफ्टी के, उसके अकॉर्डिंग हमारा हेलमेट जो है वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने उसको टेस्ट किया है डिफरेंट सिचुएशंस पे, तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि हमारा जो हेलमेट है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, तो सेफेस्ट है। और दूसरा ये है कि पेट्रोल पंप में भी हम उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं कि लाइक पेट्रोल पंप पे तो हर कोई 2 व्हीलर आता ही है, तो उसके थ्रू हम उसको ये समझा सकते हैं कि आप पेट्रोल भराइए और आपको अगर आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, आप उन रिवॉर्ड पॉइंट को कलेक्ट करके एक बार में कोई भी हमारे कंपनी को ब्रांड का कुछ हेलमेट ले सकते हैं या फिर दूसरा प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। Okay. So you will take the name of some reference body, like you will standard body like OSHA, Occupational Safety and Health Administration. So these bodies, if they have recommended some kind of international standard for helmets, maybe you can bring our helmet is of international standard, it is a safe, something like that. Okay, Anita Pal. Sir, first of all, I will go to research about the good competitor existing in the industry. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनके प्रोडक्ट को देखूंगी कि मतलब क्या उनकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है जिससे वो अभी उनका ब्रांड एस्टेब्लिश्ड है। तो उसमें थोड़ा सा अपनी जो मैं बनाऊंगी उसमें थोड़ी सी क्वालिटी इनहांस कर दूंगी जो एग्जिस्टिंग है, फिर वो यूनिक भी होगा। तो उसे मैं एडवर्टाइजमेंट वो कंपैरिजन करके कर दूंगी कि इसमें ये है, हमारे में ये फैसिलिटी एक्स्ट्रा अवेलेबल है, तो वो कस्टमर के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव होगी, तो वो जा सकते हैं उससे। आप कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगी और जो आपके कंपटीटर्स ने नहीं किया होगा आप उसी के ऊपर थोड़ा और करेंगे काम। या तो जो उनकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होगी मैं थोड़ा उससे ज्यादा क्वालिटी का बना दूंगी, तो वो प्लस पॉइंट हो सकता है। ओके, नाउ प्रभात। Sir, first, we already know that a lot of citizens in India do not use helmet, or either they go for cheaper ones. So we will try to raise awareness through like some critical opportunities like World Road Safety Day, and as my friend said, like Auto Expo exhibition. So हम इन सब जगह पर जो हमारा कस्टमर बेस है उनका अवेयरनेस
बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज करें, क्योंकि दिस इज नॉट फॉर जस्ट अवॉइडिंग ट्रैफिक चलास, बट टू अवॉइड एक्सीडेंट्स एंड सेव योर लाइफ. Okay, Sachin, unmute yourself, Sachin. Thank you, sir, for giving the chance to conclude. I want to say that कि हम लोग क्या करेंगे कि ये जो ही बाइक राइडर्स होते हैं, बहुत सारे बाइक राइडर्स होते हैं जो वर्ल्ड टूर पे जाते हैं या इंडिया टूर पे जाते हैं, हम उनके साथ कोलैब कर सकते हैं, उनका जो भी एक्सपेंसेस वो बियर कर सकते हैं और उनके थ्रू अपने हम प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकते हैं कि आप हमारा हेलमेट पहनिए, आपका जो भी एक्सपेंस होगा हम बियर करेंगे वर्ल्ड टूर का. तो इस तरह से बहुत सारे बाइकर्स होते हैं जो ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करते हैं और वर्ल्ड टूर पे जाते हैं, तो उनके साथ कोलैब कर सकते हैं. देखिए, आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करने की ट्राई करें. आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वहां से इमीडिएट फ्लिप मिलता है आपको. किसी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, आपने एक पॉइंट किसी ने मैंने दिया, आपकी एक कंपनी है जो सेफ्टीज में वर्क करती है, किसी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ कोलैबोरेट करने की ट्राई करें आप. सर एक्चुअल में क्या है सर कि वो बहुत सारे बाइक राइडर्स होते हैं, उनका यूट्यूब चैनल्स होता है जिनमें मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं. हाँ, तो उनके थ्रू हम एडवर्टाइजिंग नहीं करना चाह रहे. देखिए, वो सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट में तो आ गया वो चीज. आपके जो पॉइंट्स है, सोशल मीडिया पे हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, फिर इन्फ्लुएंसर्स को यूज करेंगे. इन्फ्लुएंसर्स, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. दैट इज वन थिंग. अब उसमें खर्चा आता है, एडवर्टाइजमेंट वो एक्सपेंडिचर हुआ. फिर आप कोलैबोरेट करने की ट्राई करें. Let's say you collaborated with Bajaj Auto, you collaborated with some Honda, Hero Group, you collaborated with some bike manufacturer, you collaborated ki whenever you give your bike, then at same time a person can be offered this helmet also complimentary. So उसी में कहीं adjust हो जाए तो that feature can be added, something like that. वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज होगी. You should try to do that because that will immediately ensure market for you. अगर कोई बड़ा player मान जाता है, that is what you should try to do. Then yes, excuse me sir. सर यहाँ क्वेश्चन में सर 3 क्वेश्चन पूछा गया था एक्चुअल में जो गेस्ट रिव्यू दिया गया था. हाँ, लेकिन उस तरीके से कभी कोई डिस्कस हुआ नहीं सर ग्रुप में. हाँ 3 क्वेश्चन पे जो 3 क्वेश्चंस. आप कौन से वाले क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं? सर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ डू यू सजेस्ट ब्रांडिंग, सेकंड पूछा गया हाउ आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड एंड हाउ टू एलोकेट द बजट. ओके, हाउ डू यू सजेस्ट ब्रांडिंग, वही तो आप ब्रांडिंग कर रहे हो. व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड, वही है ब्रांडिंग जो आप करते हैं. ब्रांडिंग मतलब कोलैबोरेशन करना, उसके लिए हमें उन कंपनी से मिलना पड़ेगा, वो स्टेप्स होते हैं. एंड एलोकेट द बजट, जो हम बोल रहे हैं कि हमारे पास लिमिटेड बजट होगा, सो वी कैन नॉट स्पेंड मनी ऑन दिस. लाइक ही टोल्ड यू नो, स्मार्ट हेलमेट यूज करेंगे, मोबाइल ऐप यूज करेंगे, उसमें खर्चा आएगा. तो आपका जो बजट है दैट शुड नॉट गो वेस्ट. सो यू ट्राई टू फाइंड आउट अर्लियर दैट द बजट व्हिच वी हैव दैट शुड नॉट गो वेस्ट इन मार्केटिंग. सो आपको एक R&D में पैसा लगाना पड़ेगा, मार्केटिंग में पैसा लगाना पड़ेगा, वो सब चीज में पैसा लगाना पड़ेगा. So where do you allocate that particular R&D में लगाना है या market survey में लगाना है? So whenever you have money, you need to do comparative analysis, market survey, money will be spent. You will make a very good product like Ajit said, smart helmet बनाते हैं तो smart helmet के लिए एक R&D team create करनी पड़ेगी. वो ऐसा थोड़ी बन जाएगा, पैसा जाएगा. Then you are saying I am to do marketing also. So वो सारों के लिए तुम्हें क्या है, budget allocate करना पड़ेगा and production line you have to create. So you will basically minimize the expenditure in the beginning, how it can be done. That is a point you have to think of. So you need to talk about money, that is the meaning of budget. You have to talk about execution plan, that is the steps, and you have to tell the plans, plans, what is the plan in your that is the 3 parts were linked actually. All the 3 were linked. So how the steps to follow, तो ऐसा कुछ होगा कि पहले ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? That is what I'm telling you, know, like steps followed means whatever idea you are giving, you tell how it is to be done also. Whenever you are saying that like you said, okay, we will collaborate with those companies which are already using our safety helmets. We'll talk to their employees and we will offer them at discount level these helmets. And they will start using our this. So that is a step actually. What do you suggest? How it is to be done? That is called a step. मैं ये कहना, तो हमारा डिस्कशन बहुत डाइवर्स चला गया था, किसी एक पॉइंट पे तो आ नहीं पा रहे थे. एक पॉइंट होता भी नहीं इनमें. There are so many points. Cumulative होता है ना. There are so many points which you have to think of. I mean at the end you have to give 1 point each. सर तो अलग-अलग पॉइंट्स का फिर तो अलग-अलग स्टेप्स फॉलोड होगा, तो वो तो आ नहीं पाएगा आंसर इस क्वेश्चन का. Step कुछ नहीं है. Step is execution. That is what I'm telling you. Okay. Step is nothing but execution. How you execute, that is a step. This is what we want to do. Question is how you want to do. That is called execution part. And budgetary means money कहाँ खर्चा आएगा उसमें. Then I think this
certain things, certain points were good from you, like रेफरेंस बॉडी का नाम ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, उसका नाम यूज कर लिया तो एक लोगों को ऑथेंटिसिटी प्रूव होती है। अपना आपका ऑलरेडी एक ब्रांड है उसको यूज करने की ट्राई करो। जब उसने बोला आपका ऑलरेडी ब्रांड है तो उसको कहाँ यूज करने वाले हो आप? उन कंपनीज उन इंडस्ट्रीज में जहां आपका ये यूज हो रहा है वहां पे इसको भी दो। साथ में लोगों को ये रियलाइज कराओ कि आप ऑलरेडी इसमें ब्रांड हैं। तो वही इसी में आपने आगे सजेस्ट किया कि व्हेन यू आर प्रोटेक्टिंग समबडी इन द इंडस्ट्री, व्हाई नॉट प्रोटेक्ट हिम ऑन द रोड आल्सो। सो इतने साल से फॉर द लास्ट 25 years we are saving your head in the industry, now we decide to save it your head on the road also, something like that you have to so do that। मटेरियल पे शो करना है तो आप कंपैरेटिव एनालिसिस करो कि बाकी लोग इस तरीके का मटेरियल यूज नहीं करते हैं। देयर इज अ लाइट, मतलब गर्मी है, बाकी सिंपल हेलमेट में गर्मी लग रही है और आपके हेलमेट में गर्मी नहीं लग रही, समथिंग लाइक दैट यू हैव टू डू दैट। इवन फीमेल आर फाइंडिंग इट कंफर्टेबल टू यूज। आई मीन जैसे चश्मे की ऐड आती है, लेंस कार्ड की ऐड देखी तुमने? लेंस कार्ड की क्या होता है उसके अंदर, एक चश्मे को बड़े कलरफुल दिखाया जाता है। वैसे ही जैसे एक लड़की आई उसने लाल पीला नीला रंग का हेलमेट डाला और फिर आपने फीमेल कस्टमर को अट्रैक्ट किया कि अभी तुम्हें हेलमेट जो है वो स्टाइल है तुम्हारा, हेलमेट पे अपना वो शॉर्ट बना के डालते जाओ यूट्यूब पे, दैट विल लुक सो गुड। यू अंडरस्टैंड दैट? बहुत से लोग हेलमेट इसलिए नहीं डालते क्योंकि उनको लगता है कि दे आर लुकिंग फनी। अगर तुम इस चीज को हटा दो, यंगस्टर्स क्यों हेलमेट नहीं डालता, पहले उसका एनालिसिस करो कि लड़के हेलमेट डालते क्यों नहीं है। अजीत अगर हेलमेट नहीं डालते तो पूछ भाई अजीत हेलमेट क्यों नहीं डालता, तो अजीत बताएगा कि यार मेरा जो लुक है वो खराब हो जाती है, आई डोंट लुक लाइक यू नो फैंसी। सो फिर तुम उस पे वर्क करो, ज्यादा खर्चा हो जाएगा। हाँ पैसा, तो उन सब चीजों पे वर्कआउट करना स्टार्ट करो कि आप बहुत स्टाइलिस्ट बनाओ, लोगों के लिए कंफर्टेबल बनाओ। सम पीपल विल से कि नहीं मेरे को कंफर्टेबल नहीं है वो चीज, तो ऐसा उनको बनाने की ट्राई करो, उस तरीके से करो। एक और चीज जैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पॉइंट कि जब फोन आता है तो लोग सुन नहीं पाते हैं और लोग फोन सुनना चाहते हैं, तो क्या हेलमेट के अंदर ऐसा कुछ बनाया जा सकता है? बट आई डोंट नो वेदर दैट कैन बी डन बिकॉज दैट इज अलाउड और नॉट, बिकॉज चलाते टाइम आप फोन सुन सकते हैं, वो अलाउड नहीं है एक्चुअली। बट वो प्रैक्टिकल ऑलरेडी है सर, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है सर, दोस हेलमेट सर हेलमेट के अंदर आता है वो है सर, वो ब्लूटूथ कनेक्टेड होता है सर, दे जस्ट टैप इट एंड ब्लूटूथ कनेक्टेड, वो स्मार्ट के बारे में बोला, स्पेस बना हो उसके अंदर खाली विदाउट टचिंग। सर मुझे ये लगता है, मैं एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ, मुझे ये लगता है कि सर जो एडवर्टाइजमेंट एक दो टेक्निक से, दो तरीका से होता है। एक होता है कि हम सीधे अपना हेलमेट के बारे में बता रहे हैं, हमें लगता है कि एडवर्टाइजमेंट ऐसा अपना ब्रांड के आना चाहिए कि एक सोशल मैसेज आना चाहिए। अगर कोई फैमिली का एक ग्रुप दिखाई देना चाहिए, उसके में एक जैसे कोई सन है, बच्चा उसका है जो मैंने वो हेलमेट का यूज नहीं करता, ऑटोमेटिक एक दिन ऐसा होना चाहिए कि कुछ मैंने एक्सीडेंट हो गया और चला बसा। तो ये सोशल मैसेज कि आप अगर हेलमेट यूज प्रॉपर वे में करते हैं तो आपको यह फैमिली का भी आपको मैंने पता रहता कि हाउ टू, मैंने फैमिली में मेरा क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ये चीज तो बाकी मैन्युफैक्चरर करते हैं, ये तो गवर्नमेंट भी करती है, ये तो रोडवेज, ये जो आपका ट्रांसपोर्ट, ये सॉरी आपका ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, ये भी करता है। सोशल मैसेजेस गवर्नमेंट भी देती है, सब देते हैं वो। इससे लेकिन सोशल मैसेज के साथ लास्ट सर, सोशल मैसेज के साथ साथ लास्ट में एक लाइन डालना चाहिए, बी यूज दिस ब्रांड ऑफ हेलमेट, ऐसे करना। नहीं वो तो है ही, वो उस कैटेगरी में आ जाएगा जिसमें आपने एडवर्टाइजमेंट किया, वो तो उसमें आएगा। आपके इस पूरे केस स्टडी के बहुत से स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स में ये भी आएगा कि आप एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से करना चाहते हैं। लोगो लगाएं, अपने ब्रांड को ऑलरेडी यूज करें, फिर वो चीज करें, सोशल मीडिया पे आप लगाएं। मैंने बताया ना कि ये 2-3 एग्जांपल, लेंस कार्ड का एग्जांपल मैंने आपको बताया कि फीमेल को यूज करो। फीमेल अभी हेलमेट कितना यूज करती है, अगर नहीं यूज करती फीमेल तो क्यों नहीं करती, पता करें। या लड़के जो वो ग्रुप नहीं करता तो क्यों नहीं करता, तो अगर आप उसका सोल्यूशन ढूंढ पाए तो आपकी प्रमोशन भी हो जाएगी, सेल्स भी हो जाएगा। और हेलमेट में हम कलरफुल चीजें नहीं देखते, आप चेक करना इस चीज को कि हेलमेट बहुत कलरफुल नहीं होते, ऐसे फैंसी टाइप वो नहीं होता कि जैसे वो है। तो लेंस कार्ड अगर कोई आइडिया लेके आया है तो मे बी ये चीज यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट की जा सकती है। जब आप वेंचर्स में कूदोगे ना, एंटरप्रेन्योरशिप में कूदोगे, तो आप देखोगे कि ये जो लोग एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव फील्ड है। एडवर्टाइजमेंट आप लोगों की एडवर्टाइजमेंट देखो ना, एडवर्टाइजमेंट बनाई हुई बहुत दिमाग लगा के बनती है वो एडवर्टाइजमेंट। कई जगह कॉलगेट में डॉक्टर को लेके आ रहा है, सीमेंट में सिविल इंजीनियर को लेके आ रहा है, और लेंस कार्ड में अलग अलग कलर लेके आ रहा है। तो उसका मतलब एडवर्टाइजमेंट इज अ क्रिएटिव फील्ड, तुम्हें उसका यूज करना पड़ेगा। हाउ टू अट्रैक्ट पीपल टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट, यस दैट इज अ फील्ड एक्चुअली। एंड देन R&D टीम किस पे काम करे, अपने कंपटीटर को पहचाना, वो अलग टीम है। एडवर्टाइजमेंट की टीम अलग है, मार्केटिंग कोलैबोरेशन वाली टीम अलग है।
You are going to the company's automobile company. I told Ajit, go and hit collaboration with some big company. The moment you say, sir, 4 companies तैयार हो गई, तो we got a business, right? That is one team. One team will work on that. Another team will work only on advertisement. कैसे advertisement करना है, creativity. One team will work on product development. What kind of product we have to develop. तो ये 2-3 टीम्स हैं इंडस्ट्री के अंदर, ऐसे चलता है. It is called concurrent engineering, simultaneous engineering. कि भाई तू मार्केटिंग देख, तू प्रोडक्ट देख, तू रिसोर्स जनरेट कर, something like that happens actually, right? So I hope you got some idea now on the basis of this. Baki, you people were speaking. I think that is good. Keep talking, keep speaking. That is the most important part. And understand how you are to basically think of some particular problem which is given to you. How you have to think. That is very, very important. Got it? Chalo, I'll catch you at 10:30. 10:30 I'll catch you with group. Sir, मेरा एक doubt HR है आजकल कि नहीं हो रहा है सर. हाँ. सर HR नहीं हो रहा, आज भी नहीं हुआ सर. नहीं, HR हुआ तो है, आज भी शाम को हुआ है. तो सर ग्रुप में मैसेज नहीं आया कुछ. हाँ, वो 10:15 पे अलॉट किए थे मैंने. हाँ, आप बताओ. सर मेरा एक डाउट है कि हमको केस स्टडी में